पंजाबी खबरनामा देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮਹਾ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ। ਕਿਹਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਵਧੇਗੀ ਠੰਡ। ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮਹਾ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਘੰਟੇ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਪਿੱਠ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਸੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਪਿੱਠ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਿੱਠ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਡਿਬੇਟ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਪਾਤਾ, ਜਿਸ ਡਿਬੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ PPT 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਐਮਡੀ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਗਰੌਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਠਪੁਤਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ L1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰ L1 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਧ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ कथित घपले का जवाब देना चाहिए है। एक्साइज की चोरी जो पंजाब और दिल्ली में हुई है, इसे नाम देता हूं चोरी और सीना चोरी। ये बहुत बड़ी चोरी है और चोरी करने के बाद उसे जस्टिफाई करने के प्रयास में सीना चोरी हो रही है। देखिए, ये
पहले कह के आए थे कि कॉलेजेस, स्कूल्स, मंदिर, धार्मिक स्थानों के आगे हम शराब नहीं बेचेंगे। तो यकायक जब ये पॉलिसी आई दिल्ली में साहब, तो करीब करीब ये 2.5-3 महीने रही पॉलिसी। ये 2.5-3 महीने पॉलिसी रही और 2.5-3 महीने में इस पॉलिसी को विड्रॉ करना पड़ा। जब ये पॉलिसी विड्रॉ होती है तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला। कोई भी कार विड्रॉ होती है जब, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट की वजह से ही उसे वापस लिया जाता है। अगर ये जनहित में थी, लोकहित में थी, तो विड्रॉ क्यों हुई? और यही पॉलिसी पंजाब में भी इंप्लीमेंट हुई, आज तक विड्रॉ नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, मैं उससे 2 कदम आगे जाऊंगा। ये 300-400 करोड़ का मामला नहीं है हजूर, ये 30-40 हजार करोड़ का मामला। ये उससे बहुत बड़ी बात है। अब अगर आप देखें, ये 1.25 महीने में, 1.5 महीने में जो तथ्य सामने आया ना, 336 करोड़, ये 400 करोड़ का घपला हो गया। ये पॉलिसी थी सालों के लिए। इसका मतलब 1 साल में 4000 करोड़ की चोरी होती है। 4000 करोड़ प्रमाणित करना बहुत जरूरी है साहब। अब ये देखिए, इस पॉलिसी के जन्म लेने से 1 साल पहले की पॉलिसी में 7,860 रुपए की सेल है। दिल्ली में 7,860 करोड़ रुपए की सेल है और मुनाफा, एक्साइज का जो मुनाफा है वो 3,378 करोड़ रुपए। अब आप इस बात को देखिएगा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद पॉलिसी लागू, 13,500 करोड़ रुपए की सेल है और स्टेट को आ रहा है 312 करोड़। स्टेट को 312 करोड़, वहां सेल 7,860, स्टेट को 3,378 करोड़। उससे पहले की पॉलिसी में हजूरे वाला एक बोतल 530 की बिकती थी। जो प्राइवेट प्लेयर है उसको 33 रुपए जाते थे और स्टेट को 330 एक बॉटल। 530 दी, ठीक है जी, स्टेट को 330 और 33 रुपए रिटेलर। तो कंज्यूमर के लिए जैसे ये पॉलिसी आती है 560, 30 रुपए बढ़ गए, स्टेट को 8 रुपए और प्राइवेट प्लेयर को 363 रुपए। कितने? 363 रुपये प्राइवेट प्लेयर नु, तो स्टेट को 8 रुपये। कोई जस्टिफाई कर दे हजूर। मैं पंजाब पे आऊंगा, पंजाब तो खैर आप तो छोड़ो ही मत, एवं नहीं ये भजदा में तो हड्डियां थोकला। इन बातों का कोई जवाब दे दे मुझे, कोई। मैं कह रहा हूं जुम्मा देता हूं। अब ये देखिए, अब आप सर जी पंजाब ले लो, दमगजे मार दे 4,000 करोड़ नहीं मार, 4,000 करोड़, ये 300 रुपए बताता, वो कहना नहीं 300 करोड़ नहीं, 500 बताता, वो कहना 400 करोड़ रुपये बताता। एक केड़ी नीति का पैदा करके आए सी, एक चीका काहदे मारते सी, कारपोरेशन बनावांगे। बोलो तुम सारे गवाह, कारपोरेशन बनावांगे, स्टेट की इनकम बढ़ावांगे। तां ही तो मैं कहना यार दब गया ठेकेदार थले, ਉਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਬਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੂ। ਸਰ ਜੀ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ 4000, ਕਦੇ 3.5, ਕਦੇ 5, ਅਸੀਂ 500 ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, 300 ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 44,000 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ? 44,000। ਕਰਨਾਟਕਾ 29,920, ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰੋ 30,000 ਕਰੋੜ। तेलंगाना 31,000 करोड़। कर्नाटका तुम दसता, केरला 16,000 करोड़। हुण मैं हैरान कर दूं थोनू, कहने असीं 3,500 कमाया थी, मैनूं लगदा रेवन्यू 4,000 होना, 4.5 होना। मैं हैरान कर दूं, ये 150% इंक्रीज है, कितने 200% है, कितने 15% है हर साल। और इत्थे मैं दसना जरूरी समझदा कि तेलंगाना 2002 च 2,000 करोड़ कमाਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ भी 2,000 करोड़ कमाਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ 2,000 करोड़ ਤੋਂ 44,000 करोड़, ਅੱਜ 48,000 करोड़ रुपए ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 करोड़ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ। ਇਹ ਬਰੋਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਟੇਟ सिर्फ लाइसेंस फीस का, क्योंकि ठेकेदार है नहीं ना, उत्थे कॉरपोरेशन है, सो सारिया एप्लीकेशन जड़ियां ने वो कॉरपोरेशन में आउंदी। किसी ने 60,000 नौकरी दी है, किसी ने 70,000 दी है, किसी ने 1 लाख बंदे नौकरी दी है, डिलीवरी वाले मिला के। हाँ जी, लाइसेंस फीस का 3,500 करोड़ रुपया कमाऊंगा जी स्टेट। लाइसेंस फीस 2,600 ठेके है, कोई जवाब दे दे। 2,600 ठेके है साहब, 2,600। 1,36,000 एप्लीकेशन, 2 लाख रुपए फीस है, नॉन रिफंडेबल। एक साल के 3,500 करोड़ रुपए, जितने ये सारे शराब बेच के कमाते हैं, वो बिना शराब की एक बूंद दिए 3,500, 4,000 करोड़ रुपये फीस। तो एक कपला नहीं, ये कितने जाता मैं दसू, मैं टका के दसू, मैं बताऊंगा ये कहां जाता है, किसकी जेब में जाता है। और जिनकी जेब में जाता है वो भैंस से भागते हैं, क्योंकि अंधों में काना राजा तो हो सकता है, 2 आंखों वालों से नहीं लड़ सकता। सख्त शब्द है, लेकिन सख्ती करनी होगी, क्योंकि चोरी बहुत लंबी हो गई है, रिपेयरेबल डैमेज। राइट सर। अब हम आते हैं जी पंजाब। सर जी, क्योंकि ठेकेदारी सिस्टम है, इसलिए L1 के जो लाइसेंस हैं वो सरकार बांटती है अपनी मर्जी। और ये जो दिल्ली की पॉलिसी है, इसमें जो कमीशन थी वो 5% से 12% कर दी थी। मुनाफा नहीं है सरकार स्टेट, और चली भी 1.5-2 महीने, तो ड्रॉ कर ली। पंजाब में वही L1 के लाइसेंस जो हैं उनको सुपर L1 बना दिया गया है। क्या जी? सुपर बंपर, जिन्हें पैसे चोरी दे आउंदे उन्होंने बंपर दो नाम, सुपर सुपर चोरी। मास्टरी जी ये चोरी की है, ये गवर्नेंस की होती, पंजाब किते ना किते होगा। कोई भी सूबा कहीं का कहीं, तमिलनाडु, इसीलिए सुपर L1 बना दिया जी उनको। और उनकी मोनोपोली बना दी, क्या कह के कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ओपन बिडिंग करते हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वही इनको ले सकते हैं। मैंने बार बार कहा है कि 10 कार ओपन, नाले अपने नाले पिछले आधे। ये नहीं है कि मैं इनसे लड़ता हूं, तो पिछले से भी कैप्टन से पहली कैबिनेट में, ये आज का नहीं, 20 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। और ये लड़ाई जीतनी ही है पंजाब, ये मेरी लड़ाई नहीं है, पंजाब के लोगों के लिए मेरा क्या है सर? जी सर, ये 10,000 करोड़ की कमाई है साहब। पहले ये हुआ करता था कि 5% ले लो यार आप, और उसमें ही बगार वगार करा लेंगे। अब कहे वो छोड़ो यार, तुम 1% बढ़ा के 6% लो, 6 हमें दो,
ऐड जे इधर दे उधर पता नहीं जिथे मर्जी टो मर्जी लाओ, ऐश करो विद कैश। पंजाब के माल पे यारों की रोज दिवाली, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। करो। मैं सीएम साहब मेरा छोटा भाई है, बड़ी इज्जत देता है और मैं उसकी इज्जत करता हूं, लड़ाई निजी नहीं है। मैं कहता हूं कर रिलीज, लगता नहीं वही पुरानी, उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया। अरे भाई पंजाब के लिए क्या कर दिया वो बोलना। लोगों ने नकार दिए, तुम्हें वोटें डाली है सर, उन्हीं लोगों को। और मैं आपको कह दूं केजरीवाल साहब ने एक जोन की पॉलिसी, ये 15-20 जोन बनाए थे दिल्ली में, एक जोन की पॉलिसी को तोड़ के काट के दीप मल्होत्रा को ब्लैक लिस्टेड शराब बेचने वाले अकाली दल के एमएलए भी रहे, उनको दे दी थी जो 2 जोन की, बड़ा शोर मचा। ये वही प्लेयर आ गए सर, डल परिवार, नाम ले रहे हैं। दीप मल्होत्रा उनका बेटा अरेस्टेड, एक को ईडी ठोकी हुई है। ये बिल्कुल सत्य चीजें हैं। महेंद्रू ब्रदर्स और बड़े बड़े लोग, केसीआर की डॉटर को भी तलब किया गया था, ईडी ने बुलाया था। तेलंगाना से चोरी तो सीख ली, तंबू में से रुमाल निकालना, लेकिन इनकम बनाना नहीं सीखा। तंबू से रुमाल निकालो या तो रुमाल में से तंबू। करप्शन ऑफ द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। आप बताइए फिर इस पॉलिसी को जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट, और उनके कोई रेट फिक्स नहीं, नोटिफाई नहीं किए। क्यों? क्योंकि सबसे आसान है, एक डिस्ट्रिक्ट में 500 रखो, दूसरे में 700 रेट का, तो क्या क्या स्मगलिंग इधरों उधर क्या, हजारों करोड़ की एक्साइज की चोरी। जहां जहां कॉर्पोरेशन है वहां चिप लगता है बॉटल पे, वो कंप्यूटर पे बैठे कहते जानी कितने हम पहुंच गए, कितनी जानी किलोमीटर हिल के तो था। यहां हजारों करोड़ की एक्साइज की चोरी, फैक्ट्रियों से ट्रक निकलते हैं, कोई 5 पैसे नहीं देता। डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दी, नोटिफाई नहीं हुई, 500 रख दो, इधर रेट 800 रख दो, 800 वाला जो है, ठीक है जी, वहां 500 वाले की जाके 6 पेटियां बेचो, ठा हमारे नारे। जब दिल करता है ठेकेदारों से मिलके 10% एक्साइज बढ़ा देते हैं। जो बेचारा शादी कर रहा है, शराब डबल रेट, अपनी शादी फ्री, शादियां ना माहौल। ये चोरी दी इंतहा। सर जी सीक्रेसी, ओथ की सीक्रेसी होती है जब हम मिनिस्टर का चार्ज लेते हैं कि हम अपने स्टेट को कहीं और दूसरी जगह। एक ऑफिसर की रिटन स्टेटमेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस ऑफिसर का, उनकी रिटन स्टेटमेंट है कि हमारे मंत्री ने, एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले ने जाके सिसोदिया साहब के घर में साइन किया। दिल्ली ऑफिस में। भाई अगर तुम पॉलिसी विड्रॉ कर रहे हो, तुम्हें लगता है यार ये हमारे ऊपर गलत इल्जाम है, कोर्ट में चले जाते हैं। डिड यू गो टू द कोर्ट? गए कहीं कोर्ट में? है सर? बिल्कुल नहीं। ये लीडर चला रहे हैं। एक आरसी पीने वाली होती है, एक आरसी चलाने वाला भी है। नाम कानून है जी। क्यों? कुलवंत सिंह को उठाया, सारे L1 के लाइसेंस, सारे ठेके मुआली के। देखो कितनी जल्दी स्विच मारते हैं। देखो ठा, मेरिट कैन नॉट बी ऑनर्ड ओवर हियर। स्टेट का कोई वो नहीं है, ऑक्शन में कोई वो नहीं है। रातों रात रियल स्टेट से ठेके ठक। हुण चुक लिया L1 दे लाइसेंस, अश्योर्ड मोनोपोली है।
अश्योर्ड प्रॉफिट है। 9,000 करोड़ थे 12% ला लो, कितना हो गया? 11,000 करोड़। 11,000 करोड़ सिद्धा शराब था। ये तुम वो नहीं करोगे डबल खपत शराब की सर, डबल। मैं शराब के हक में नहीं, लेकिन अगर बिकती है तो पंजाबियों के हक में, वेलफेयर के लिए वो स्टेट के एक्सचेकर में पैसे आने चाहिए। ये L1 के लाइसेंस 10,000 करोड़ की गेम है सर, 11,000 करोड़ की। अब तो अशोर्ड इनकम बढ़ गई है ना सर, 12% हो गई है। ये जो मैं फैक्ट्स दे रहा हूं, ये आपको कागज समेत सबको दूंगा। कुछ नहीं छोड़ा, कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी है, लेकिन वो सागर को गागर में डाला है। इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि ये ऐसे ही जाएगा। टू पुट इट सक्सिंक्टली, टू से द लीस्ट, कुछ बचता नहीं। चोरी और सीनाजोरी। हुण रोने हो, एक बात का जवाब नहीं दिया। इसका रिप्लाई कोई नहीं है कि जी इतनी सेल थी और इतना प्रॉफिट 3,000 कुछ करोड़ का, और फिर तुमने चलाई तो सेल 13,000 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आया 300 करोड़ का। कोई जवाब नहीं दिया आज तक इन्होंने। जवाब आज भी है नहीं। सर, जब खपत डबल है, कई स्टेटों से ट्रिपल है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक स्टेट की इनकम 44,000 करोड़ और तुम कह के आए थे कॉर्पोरेशन बनाएंगे, दूसरे की 30,000 करोड़ रुपए और तुम्हारी 4,000? उतने वो लाइसेंस फीस में से कमाते हैं बिना एक बूंद दिए। इतने सुखना ले नहीं पिए ने। ये है, ये इनकम है। फिर हजूर, आपकी आज पेशी है, जनाबे अली पेशी पढ़नी चाहिए। मैं तो कहता हूं पंजाब में पक्की पढ़नी चाहिए। आपने कहा था 20,000 करोड़ रुपए रेत से निकालेंगे, हैं जी? सुन रहे हो आप? 20,000 करोड़ रुपया रेत से। मैं कहा जी जीरो कट मित्र प्यारे, ये ठेकेदारी सिस्टम है, 200 करा के था। निकाल लो स्टेटमेंट मेरी, क्योंकि ना तो मेरी रेते की खाड़ा है, ना मेरे पास कोई शराब का ठेका है, ना मेरे मुंडे को है, ना मेरी घर वाली को है। 1995 में क्रिकेट खेड के कुछ चीजें लेती सी, मेरे तो अकाउंट भी बंद किए हुए, वट दे कट ना मैं डरा। और डरने वास्ते मॉरल, जो बंदे डरते हैं उनको मॉरल अथॉरिटी नहीं होती। नैतिकता की ताकत जिसके पास है वो डरता नहीं। इश्क है पंजाब से। इन पंजाबियों, 3 करोड़ पंजाबियों में ही भगवान देखता। जवाब दे दे कोई, एक चीज का जवाब दे दे। मैंने 300 सवाल कर दिए, एक का जवाब नहीं आया। सर, आपको पंजाब ने वोटें डाली थी, जनाबे अली चीफ मिनिस्टर साहब। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये पंजाबियों के खून की और पसीने का पैसा, जिसकी लगातार चोरी हो रही। फिर जनाबे अली आपकी पेशी है। आपने कहा था बजट से 34,000 करोड़ निकाल इनकम है जी। इनकम मतलब 54,000 करोड़, 250 नहीं निकाली आप तो हो गए लुप्त। यहां लगा के लारा हो क्या रहा है? 10% सेवा है तो 90% मेवा है। दे मेवे ते मेवा। ऐसे ही नहीं कहते वो रिमोट कंट्रोल। हमारे लीडर ऐसे नहीं कहेंगे रिमोट कंट्रोल चलता है। देखो हो क्या रहा है। कहां ये 50-60 हजार करोड़ रुपए डबल होके 1 लाख करोड़ की इनकम, और कहां आप 50,000 करोड़ का कर्जा, उसके ऊपर 30,000 करोड़ सूद दे रहे हो।
ये तो सबसे आसान है। महाराज सुन रहे हैं आप? भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दर्शन नहीं हुए आपके, बेनकाब कर दूंगा सर, आपके मुखाटे उतार के यूं यूं फेंकूंगा। सर कहां है वो 54,000 करोड़? आप तो कहते थे शांति कर देंगे पंजाब, अमन अमान कर देंगे, बिजनेस कर देंगे, कोई रेड नहीं होगी। हर रोज 4 बंदे काट दिए जाते हैं। कहां हैं आप? तो सर ये जो मैं कह रहा हूं, मैंने आज तक कुछ कह के एक कदम पीछे नहीं किया। इनकी तरह नहीं हूं 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। खड़ा हूं, जो कहता हूं 100 बार सोच के कहता हूं, लेकिन एक बार कहता हूं तो खड़ा रहता हूं।